میرا نیکسٹ سوال ہے، میرے خیال میں ناظرین کافی انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ کنزیومرز جو ہمارے یوز کرتے ہیں شاید پہچان نہیں ہے ہمیں نقل اور اصل کی. مارکیٹ میں میجورٹی جو ہے ہمیں شکایت یہی ملتی ہے کہ جی نقلی ہے، اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جم جاتا ہے اور اس میں وہ شوگر اوپر آ جاتی ہیں لیئرز کی، کیا ہے جو کہ کہا جاتا ہے اصلی شہد میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہچان کے لیے کیا دھیان رکھنا ہے کنزیومر کو؟ پتہ چل سکتا ہے اس کو، وہ کسی طرح یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے چیز؟ اول تو جو شہد جمتا ہے وہ خالص کی پہچان ہے. اچھا، وہ خالص کی پہچان ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس پروگرام کی طرف سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو شہد آپ نے لیا اور وہ سردیوں میں جاتے جاتے جم گیا، 8 مہینے بعد 6 مہینے بعد پورا جیسے ایک مکھن کے ڈیلی کی طرح وہ بن جاتا ہے، تو وہ پیور شہد ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. جس میں ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ جمتا ہی ہے، یا وہ 2 جگہ جم جاتا ہے، یعنی آدھا کسی طرح جمع ہوا، آدھا کسی طرح. تو وہ جو خالص ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، تو جو شیرہ ہوتا ہے وہ اوپر تیرتا رہتا ہے. تو یہ ہے اس کا فرق. تو اس میں تھوڑا سا چکھنے سے بھی، جن کی زبان چکھتی رہتی ہے شاید جیسے ہم ہیں، تو وہ پہچان کر سکتے ہیں اصلی اور نقلی کی. لیکن ویسے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے آپ کو، کیونکہ اس کا HMF بڑھ جاتا ہے جو نقلی شہد ہوتا ہے، اور اس میں پالنز کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پالن جو زریبل ہوتا ہے اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا موئسچر. یہ 3 ٹیسٹوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقلی شہد ہے یا اصلی. ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کنزیومر تو لیبارٹریز میں نہیں جاتے، ان کے پاس اتنا ٹائم. ہاں نہیں، کنزیومر لیبارٹریز میں نہیں جاتے. تو یہ کہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو خالص شہد ہے اس کو بوند گراؤ اس کو پانی میں، بوند ہی رہے گا، مطلب ایسا اس کا ہوگا، مرج نہیں ہوگا، ایک دم سے اس میں وہ نہیں ہوگا، ڈیزالو کھلے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور جو ناخالص ہوگا وہ جلدی گھل جائے گا. اس طرح سے اچھا ساتھ دوسرا تھوڑی سی ایڈ کر دیں کہ شہد کا جم جانا، جیسے شہد کا جو جم جانا ہے نا، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. کچھ شہد جو ہیں کچھ مہینوں میں جم جاتے ہیں، جیسے بیری کا شہد ہے وہ 2 سال تک وہ نہیں جمتا. اگر بیری کے پھولوں کے اوپر آپ شہد رکھتے ہیں تو کبھی بھی نہیں جمے گا. اور تو یہ کہ کچھ شہد ایسے ہیں جیسے سرسوں، کچھ نہیں جمتے، کچھ سرسوں، جیسے سرسوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 2 ہفتے کے اندر ہی شہد جم جاتا ہے. پھر بہت ہے تو جیسے فلائی ہے، یہ پٹوار کے علاقے کے اندر بہت اچھا جو پوٹینشیل شہد کا پودا ہے، تو اس کا یہ 6 مہینے 8 مہینے وہ لے لیتا ہے شہد کا جمنا. تو جب اسی طرح اس شہد کو، یا تو ہمارے پاس ابھی پاکستان کے اندر یہ تھوڑی سی پروسیسنگ پلانٹ ابھی نہیں ہے، وہ ابھی پروسیسنگ پلانٹ آ جائے گا تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ شہد کو جس حالت میں ہے اسی حالت میں کھا لیا جائے، چاہے وہ جمع ہوا ہو تو چاہے جیسا بھی ہو تو ٹھیک ہے. اگر جمے ہوئے شہد کو دوبارہ بار بار ہم گرم کریں گے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈی نیچر ہو جائے، کوالٹی یعنی کہ اس کو اس طرح بھی کھایا جائے تو وہ زیادہ مکھن کی طرح وہ لگائیں وہ تو کھا سکتے ہیں، تو وہ بڑا اچھا ہے. اس کے لیے کوئی ایسی، یعنی عام ناظرین کے لیے یہ میسج ہے کہ شہد کا جمنا جو ہے نا، عام سمجھتے ہیں کہ شہد جم گیا تو وہ سمجھو چینی ہے. ہاں اگر 2 حصوں میں ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر الکولک ہو جائے تو وہ اس کی ویلیو جو ورتھ وہ ذرا خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر لیبارٹری کے اندر یا اسی کسی معیار سے. اچھا صدیق صاحب، مجھے ایک اور سوال بتائیں کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر الزبتھ میں بتایا تھا کہ مکھی جو ہے وہ کئی فصلوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. مجھے بتائیں گے کہ پالینیشن کے لیے کون سی ایسی فصلیں ہیں جو شہد کی مکھی کے مرہون منت ہیں، اور کون سی ایسی فصلیں جو کوئی اور کیڑا بھی اس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ جب ہم فصلات کی پالینیشن کے ذریعے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جتنے پہاڑی علاقے کے پھل ہیں اس میں سیب ہے، آڑو ہے، خوبانی ہے، ناشپاتی ہے، اور جو چیریز، یہ جتنے ہیں، یہ بادام، یہ شہد کی مکھی کے بغیر ان کا ہونا یا دوسرے مفید کیڑوں کے بغیر ہونا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ پورا جو شہد کی مکھیاں نا، وہ 80% ان کا رول ہے اور 20% دوسرے کیڑوں کا اس کے اندر رول ہے، جو پولینیشن ایک پھول سے دوسرے پھول تک. وہ تنہا مکھیاں ہیں، اس کے ان کو نانیپس بیس کہتے ہیں. اس کے لیے بمبل بھی ہے ایک، پھر اوسمیا اسپیشی ہے شہد کی مکھی ہے، پھر زیلوکوپا اسپیشیز ہیں، بہت ساری. اب بہت ساری ڈیٹیل کے اندر نہیں ہے، تو وہ ان کو ہم سارا اپنا جو کتابچے ہیں ان کے اندر ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وہ ہر یہ ندائے کسان ہے، یہ کسان فارمر ہے، تو وہ لوگوں تک ہم یہ نا یہ انفارمیشن کرتے رہتے ہیں کہ کیا عام لوگ جو زمیندار بھائی. تو ان میگزینز کی اویلیبلٹی مارکیٹ میں ہے یا یہ صرف کسانوں تک؟ یہ ہمارا یہ ہے، یہ کسان میں لاہور سے چھپ رہا ہے رسالہ، اور ہر مہینے ہم PARC کے جو سائنٹسٹ ہیں بشمول یہ ڈاکٹر صاحب اور میں، یہ ہمارا جو پروگرام اس کے اندر ہے. پھر ایک ندائے کسان یہ بھی ہے، کسانوں کے یعنی دہلیز تک یہ ہماری انفارمیشن پہنچ رہی ہے. اور باقی ہمارا
हमारा एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, हम ट्रेनिंग के जरिए लोगों तक पहुंचे हैं, उनके फार्मर तक उनके फील्ड के अंदर हम पहुंचते हैं। बाहर वो के जो है ममालिक में तो फसलात की अमले ज़िरगी के लिए मगज़बानों को कहा जाता है कि आप अपनी कॉलोनीज लाएं, हम आपको किराया देते हैं। ओके। यानी कि $20 से लेके $120 तक अमेरिका में, कनाडा में और जापान में ये लोग पैसे दे के अपनी फसलों पर मक्खियाँ बुलवाते हैं। हाँ। जिस वक्त अच्छा, फूल ठीक है, आने का सीजन बिल्कुल। होता है। तो यहाँ अब पे क्या चल रहा है? हमारे जो है मगज़बान, अब जब जैसे कनोला जब लगती है तब हमें कई दफ़ा फ़ोन आते हैं कि जी आप अपनी मक्खियाँ रखवा दें हमारे। और इसी तरह सनफ्लावर की भी सीड सेटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, पूरे बीज बन जाते हैं अगर फ्लावर्स पर मक्खियाँ विजिट करें। ठीक है। और बरसीम जो है, बरसीम का जब बीज बनाना हो, प्याज का जब बीज बनाना हो, तो इसके लिए भी मक्खियों का रोल होता है। ठीक है। मेहमान बैठे हैं जिनसे हम गुफ्तगू शहद की मक्खियों के ऊपर कर रहे हैं। दोबारा से आपके पास आते हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर एलिज़ाबेथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शहद तो एक हम मक्खियों से वो हासिल करते हैं, इसके अलावा मुझे बताएं ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो शहद मक्खी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है? शहद की मक्खी जो है, शहद के अलावा 5 और चीजें जो हैं हमें दे सकती है। एक तो है ज़रीगुल, जो कि वो लेके आती है बाहर से अपने बच्चों की खुराक के लिए। वो हम कम से कम 10% उससे हम चोरी कर सकते हैं, यानी उससे हम ले सकते हैं। और उसके लिए ये फंदा है, इसके लिए वो मक्खी यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से जब गुजरेगी तो कैमरे के सामने करें ताकि वो उनको, उसकी टांगों पे जो ज़रीगुल लगा होगा दोनों तरफ, वो यहाँ से जब गुजरते वक्त नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे ट्रे है जिससे हम ट्रे खींच के इधर से निकाल लेते हैं तो पॉलन निकल आता है। और उसकी शक्ल ऐसी होती है, और इसके हमने कैप्सूल बना दिए हैं जो कि क्योंकि ये कुदरती ग़िज़ा है एक, और मक्खियाँ इसको वो करती हैं, खाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, और एक प्रोटीन है, वो मुकम्मल प्रोटीन है इसके अंदर। ये कैप्सूल हमने बनाए के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मक्खियों के लिए तो है ही अच्छा। ठीक है। लेकिन लेकिन हमने, जैसे मैंने कहा ना, हम इसको कमर्शियल हेल्थ में किस चीज के लिए यूज होता है? इसमें आपकी फटीग वगैरह ठीक हो सकती है, किसी को मतलब जिंक, इट इज़ रिच इन जिंक। और मुख्तलिफ फूलों से ज़रगुल मुख्तलिफ क्वालिटीज़ रखता है, तो लोग इसको इस्तेमाल, एथलीट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। बाहर के खिलाड़ी जितने हैं वो ये पॉलन सप्लीमेंट खाते हैं, फिर उनमें स्टेमिना आता है। तो ये मार्केट में अवेलेबल है या इस वक्त हमने इंट्रोडक्टरी PRC ने, हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको इंट्रोडक्टरी पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, और हम बी कीपर्स को आमादा कर रहे हैं कि आप भी ये वाला फंदा इस्तेमाल करके आप कम से कम 10%, क्योंकि पूरे साल में वो कोई 20 किलो कॉलोनी जो है ज़रीगुल जमा करती है अपने खुराक के लिए, अपने बच्चों की खुराक के लिए। लेकिन अगर उसमें से हम 10% ले लें, 2 किलो निकाल लें, और उसमें से हम इसका जो कीमत है वो शहद से 2 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बी कीपर जो है वो दूसरी कमाई भी कर सकता है, शहद के अलावा भी। इसके अलावा मोम भी इसके जिस्म से पैदा होती है। अच्छा, यानी ये शहद खाएगी और फिर मोम प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे वैक्स का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये है वैक्स, इससे वो अपना छत्ता बनाती है इसी वैक्स से। तो जिसके अंदर में वो जो शहद है वो आप जमा कर सकती है। तो ये काफ़ी जिसे कहना चाहिए मजबूत चीज़ है कि इतना वज़न जो है, अगर हम कहते हैं ना कि हम 20 किलो निकाल लेते हैं, 40 किलो निकाल लेते हैं, तो ये इट्स अ क्रेडल फॉर द जिसे कहना चाहिए बच्चों के लिए क्रेडल भी है, इसी वैक्स से बनता है। और उसकी शहद की जो स्टोरेज है उसके लिए भी ये उसको संभाल लेता है। ये चीज़ें काफ़ी अभी मुफीद मुझे नज़र तो आ रही है, लेकिन मुझे वो एक नाज़रीन के लिए मुझे ये हो रहा है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं ये चीज़ें। मार्केट में अब हमारी पेटको की दुकान पर जो है ना, हमारी PRC की जो कंपनी है उसके अंदर हम रखते हैं। तो जो पेटको जो है ना, एक्चुअली कोई ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये PRC का ही अदारा है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है जो PRC की एंड यूजर तक, आम लोगों तक ये पहुंचे, तो उसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एंड यूजर तक पहुंचती नहीं है एक पेटको को, अगर आपने एक शॉप खोल दी है तो वहाँ कितने लोग आ जाएंगे या उसका कितना पता होगा? आम मार्केट में आप लोग क्यों नहीं? जैसे हमारे 4000 बी कीपर्स है ना, ये सब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ठीक है, लें, और फिर मार्केट में इसको प्रोड्यूस करें विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ये कैप्सूल्स बना सके। हमने तो एक टेक्नोलॉजी दे दी है। तो इनको इस तरफ राग़िब करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? ट्रेनिंग्स दी हैं हमने कई दफ़ा, पिछले 2 सालों में हमने 3 ट्रेनिंग्स दी हैं, जिनको हमने एक तो रॉयल जेली बनाना सिखाया है, रॉयल जेली है
शाही खुराक मलका की खुराक होती है, जो कि मक्खियाँ अपने जिस्म से प्रोड्यूस करती है। जैसे वैक्स प्रोड्यूस करती है, इनके 4 पेयर्स ऑफ गदूद होते हैं उनके पेट के अगले हिस्से पर, तो उधर से ये मोम जो है पहले माया हालत में होती है, फिर इसको छिलके की सूरत में हो जाती है, फिर इसको हटाती है वो अपने मुंह से और अपनी टांगों से उसको छत्ता बनाती है। तो हम लोग ये जो वैक्स है, ये जो रेवोल्यूशन आया है सारी बी कीपिंग में, ये सिर्फ इस वजह से आया है कि हमने इनको शहद खा के मोम बनाने की वो कम कर दी है, हम इनको बने बनाए छत्ते दे रहे हैं। यही मोम जो हम रिसाइकल करते हैं और उनकी छत्ते बना, बुनियादी छत्ते जैसे कहते हैं ना, वो हम दे देते हैं मक्खियों को, तो उस पर वो और मोम बना के तो छत्ता बनाती है। अच्छा डॉक्टर सिद्दीक, मुझे ये बताइएगा कि शहद की मक्खियाँ जो इससे पहले कि हम इस पे मोम को खत्म करें, थोड़ी सी है कि 1 किलो मोम जब बनती है तो शहद की मक्खियों को 8 से 10 किलो शहद खाना पड़ता है। अच्छा जो प्रोड्यूस करते हैं वही। तो ये टेक्नोलॉजी हमने ये है ना हमसे है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तो वो उसको हमने ये यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया है। और पहले तो कुदरती जो पैदा होती थी, अब बहुत थोड़ी मिकदार में जितना शहद पैदा होना था वो मोम की मद में चला जाता था। अब ये है कि शायद जब हम ये छत्ते हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया है, और आम बी कीपर जो 4000 बी कीपर वो हर साल वही छत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जो PARC रिकमेंड करती है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। शहद की पैदावार जो एक्सपोर्ट में आ गए हैं, इस वक्त तकरीबन 700 दुकानें सिर्फ शहद की एक जगह है, एक और दूसरी है 22 पेशावर में 22 दुकानें ऐसी हैं कि जहाँ से शहद एक्सपोर्ट होता है। और इस्लामाबाद के अंदर भी बाराकू के अंदर आपका जो फैजाबाद के अंदर से सुहान का इलाका है जहाँ पूर्वाद से, और अंदरूनी शहर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इससे शहद का कारोबार कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर इस वक्त 60 जो छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड जो हैं जो शहद वो पैदा कर रही हैं, जैसे वो हम किसी कंपनी को ज्यादा नहीं, बहुत सारा आप देखते हैं किसी भी सुपर मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी आपको अनवाउ इकसाम का जो शहद वो पैदा होता है। रात अली सुलेमान कॉर्पोरेशन वाले ये शहद दे रहे हैं, स्वात अली, बहुत सारी बेतहाशा शहद दी है। और PARC का अपना जो है मुतारफ कराया है कि जो हमारे जो बी कीपर हैं रजिस्टर्ड, तो उनसे वो जो शहद PARC मतलब लोगों को, यानी PARC ने जो मक्खियों की जो पहचान है इस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इससे मुतारफ हुए। PARC की वजह से मुख्तलिफ शहद का लोगों को पता चला है। पहले कहते थे जिस सवाद से शहद आया, अजवाइन का, बस वो और कुछ नहीं पता होता था कि सरसों से भी ले सकते हैं, अकेशिया से भी ले सकते हैं, सूरजमुखी से भी ले सकते हैं, बरसीम से भी ले सकते हैं, बेर से भी ले सकते हैं, और न्यूट्रिशन वाइज वो सब जो है वो बराबर है, यूकलिप्टस से ले सकते हैं, ऑलिव से ले सकते हैं, एक और किस्म के शहद हैं। एक और छोटी सी बात है कि PARC को ये यानी क्रेडिट जाता है कि PARC ने पहली मरतबा पिछले 2 साल से कलवंजी का जो शहद है वो मुतारफ कराया है। अच्छा, कलवंजी पहले तो लाया गया, कलवंजी जो है उसका बीज डाल लेते थे कि ये कलवंजी शहद है। कलवंजी का कुरान पाक में बहुत जिक्र है और यार ये उसमें हदीस के अंदर है कि कलवंजी जो है वो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। और जब अगर इसका शहद होगा तो वो कितना मुफीद होगा, तो ये PARC को ये है, तो ये दो मेडिसिनल हनीज हम कह सकते हैं। इसी तरह बेर का भी हम कह सकते हैं मेडिसिनल हनी, क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं ये जब हम निकालते हैं छत्तों में से उसी वक्त ये डार्क होता है। अच्छा, यानी जो हनीज निकालते वक्त यानी छत्तों में से निकालने के बाद काला हो या ब्राउन हो या रेडिश हो, उसमें आयरन ज्यादा होता है। और फिर वो ये वाला शहद हम रिकमेंड करते हैं दिल के मरीजों के लिए, एनीमिक पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ देखी गई है, एक तो ये जमता नहीं है और दूसरा इसकी जो और ये जो नई टेक्निक्स आई हैं शहद नहीं बनाने की, ये के हमारे मकबानों तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मेजॉरिटी या भी? जी बिल्कुल, ये लोग लेके जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म का शहद निकालने के, वो बहुत सारे यानी अनवाउ इकसाम का शहद जो है ना मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और हमारे पास यानी गरंडे का शहद है जो मरगला की हिल्स में कांटेदार के इलाका जो है गटका इलाका, वहाँ भी ये मेरा तो ख्याल है ये टॉपिक बहुत वसी लग रहा है और मेरे ख्याल में अभी हमारे पास प्रोग्राम में टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे नाजरीन के अगले आने वाले हफ्तों में इस टॉपिक पे दोबारा गुफ्तगू करें। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन दी हमें। नेक्स्ट वीक के लिए अपनी मेज़बान गालिया अमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।